کا بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہی ہے, آپ میں سے کچھ دوستوں نے آج پھر وہ مناظر دیکھے, وہ شرمناک مناظر جو کسی بھی مہذب قوم یا کسی بھی جمہوری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک مناظر نہیں ہو سکتے جو ہم نے دیکھے. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ مناظر ایسے ہی نہیں ہو گئے, ایک دن میں نہیں ہو گئے. یہ پچھلے 40-50 سال میں جو مافیاز یہاں پر راج ہوئیں, جو چند خاندان یہاں پر راج ہوئے, انہوں نے یہاں جنگل کا قانون بنایا اور ان کے لیے نہ کچھ حلال رہا نہ حرام رہا. جو ان کا دل آیا انہوں نے وہ کیا. اور مصیبت کی بات یہ رہی کہ کوئی نہ ان کو چیلنج کرنے والا تھا, نہ سوال کرنے والا تھا, نہ سزا دینے والا تھا. 1996 میں پرائم منسٹر عمران خان نے تحریک انصاف بنائی. یہ سفر شروع ہوا, مومنٹم پکڑا 2008-9 کے بعد اس جماعت نے, اور پہلی دفعہ اس ملک نے کسی کو چیلنج کرنا شروع کیا, کسی سے سوالات کرنے شروع کیے. ایسی بے راہ روی کی, ایسی کرپشن پر, ایسی دیدہ دلیری پر, ایسی دھونس پر پہلی دفعہ سوال کرنے شروع ہوئے پاکستان کے اندر. اور یہ کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے جنہوں نے سوال کیا. اس سے پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں بھائی چارے کا نام دے کے کبھی کہنے کا جی ملنا برتنا ہے, یہ ہماری سوسائٹی کے رسم و رواج ہیں, انہی مفاہمت ہے, سیاسی مفاہمت ہے, وسیع تر ملکی مفاد ہے, ان الفاظوں کے پیچھے بازار گرم کرتے رہے اور چوری چکاری کرتے رہے. آج جو ویڈیو آئی آپ کے سامنے, جو اس ٹائم پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں, جیسا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جب وہ میدان میں آئیں گے, جس دن وہ پرائم منسٹر بنیں گے, یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے. پرائم منسٹر کے الفاظ سے کہ یہ سکے کے دو رخ ہیں ایک ہی سکے کے. یہ تمام لوگ اکٹھے ہوں گے جس دن پرائم منسٹر عمران خان بنیں گے. پھر تاریخ نے وہ ٹائم دیکھا, وہی نواز شریف کی فیملی, وہی زرداری فیملی, گیلانی فیملی ہو یا کوئی اور جنہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے تھے, وہ ایک جت ہو کے انہوں نے عمران خان کو, اس کی حکومت کو, اس کا غریب کے لیے بنایا ہوا جو ایجنڈا ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اب میں آج کی ویڈیو پہ آتا ہوں. آج کی جو ویڈیو آئی اس میں بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پہلے بھی سپریم کورٹ سے نااہل ہو چکا کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانے بلکہ غلامی کرنا پسند کی جنہوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا ان کی, اور سپریم کورٹ کے واضح احکامات کو وائلیٹ کرنے پر وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے. اس کے علاوہ بھی ان کے بیلٹ کے نیچے بہت ساری ان کی اچیومنٹس ہیں, جن میں سے ایک آپ کو سب کو پتا ہے کہ ترک خاتون اول کا ہار جس طریقے سے چوری کیا گیا. پھر ایفیڈرین کا کیس آپ کے سامنے ہے, ان کا ایک بیٹا مبینہ طور پر اس کیس میں گیا. پھر حج کوٹے کا کیس آپ کے سامنے, ان کا ایک بیٹا گیا. پھر اگر آپ ملتان کی طرف جائیں تو وہاں جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا, بما اہل و عیال, وہ سب کے سامنے ہے. آج اسی ایکس پرائم منسٹر اور ایکس جو میں کہوں گا سپریم کورٹ سے نااہل ہوئے شخص, ان کے بیٹے نے اس ویڈیو میں واضح نظر آیا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہا ہے. وہ ممبر اسمبلی جو ہے ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یا ہمیں ووٹ دینا ہے یا ووٹ ضائع کرنا ہے, اور اس میں بھاؤ تاؤ اور ووٹ ضائع کرنے کے طریقے بتا رہا ہے. تو یہ تو ہمیں پتا تھا کہ یہ خاندانی طور پر ماہر ہیں, ان کے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, بچے ہوں یا کوئی بھی ہو, یہ ان چیزوں میں ماہر ہیں. اس میں جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ ایک مافیا ہے. انہوں نے جو سندھ میں کیا آج آپ نے دیکھا, وہاں پر جس طریقے سے وہاں مار کٹائی ہوئی, ہمارے ایک ایم پی اے انہوں نے جس طریقے سے میڈیا پہ آ کے بتایا کہ انہیں کس طریقے سے پریشر میں وہ ویڈیو ریکارڈ ان سے کروائی گئی, اس کو ریلیز کرایا گیا, اور ایک ویڈیو کے اندر پیچھے کالا کپڑا تھا. اور آج کسی نے ٹویٹ کی ہیں کچھ تصویریں, اس میں ان تصویروں میں پیپلز پارٹی کی بڑی سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہے, اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ
तो आपको यह भी समझ आ जानी चाहिए कि उन्हें अबडक्ट करके कौन लेके गया था और वो वीडियो कहां पे बनी थी, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड आज ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, जो एक और वीडियो के अंदर वही बैकग्राउंड है। तो मेरे कहने का मतलब आपके साथ ये है कि जो आज गिलानी साहब के साहबजादे ने जो आज गुल खिलाया है, जो एक करप्शन की वीडियो सामने आई है, इससे यह बात साबित हो गई जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि साफ और शफाफ सेनेट का इलेक्शन ये माफिया नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क की आला तरीन अदालत है, उन्होंने वाज़े अहकामात दिए और ये कहा कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए और इस लूट मार को रोका जाए। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, एक आईनी अदारा, हम उसका बहुत एहतराम करते हैं, उनका जो अलामिया कल का है, उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत वक्त दरकार है, अभी यह नहीं किया जा सकता। हालांकि जब हुकूमती वफ्द उनके सामने हाजिर हुआ, मैं भी उसमें हाजिर हुआ था, उनको हमारी तरफ से यह यकीन दिलाया गया था कि अगर वो फैसला करते हैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का, तो हम विद इन फ्यू आवर्स वो तमाम फैसिलिटीज उनके सामने पेश कर देंगे और मुमकिन बनाएंगे कि जो चंद 100 बैलेट पेपर प्रिंट होने हैं, ये प्रिंट किए जा सके। मुझे बहुत अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत एहतराम है उनका, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उस तरीके से फौरन इंप्लीमेंट नहीं किया जैसे मेरे ख्याल में वो किया जाना चाहिए था। अगर वो होता तो इस चोरी चकारी का कोई बंदोबस्त हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कि चोरी चकारी होती है। इस मुल्क में सबसे पहले इस पे जानदार आवाज जो उठाई वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2013 में गवर्नमेंट मिलने के बाद, 2015 में सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने आवाज उठाई। इनकी अपनी एक कमेटी ने 2016 में यह कहा कि बिल्कुल आइडेंटिफाइबल बैलेट होना चाहिए। सेनेट की कमेटी की प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी जो वहां पर सेनेटर शहजाद वसीम है, वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं वो रिपोर्ट। उसके साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी 23 और 24 नंबर शिक में इन्होंने कहा कि वोट आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वोट की जो उसका खुफिया रहना वो दायमी नहीं है, उसको किसी जगह पे ओपन किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी यूज की जाए ताकि मैल प्रैक्टिसेस को पकड़ा जाए। अब इस वीडियो के आने के बाद हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तकाजा करते हैं इस पे फौरी तौर पर एक्शन लें। नंबर 1, इसमें जो यूसुफ रजा गिलानी है उनको नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि उनके अपने डिपेंडेंट, उनके अपने बेटे जो उनके घर में उनके साथ रहते हैं, उन्हीं के माला मता पे जो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं और ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा वक्त अभी थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन पहुंच जाएगा। हम उनसे वक्त भी चाहते हैं एक दफा दोबारा, हम दोबारा उनकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहते हैं इन राइटिंग में कि एक तो इनको नाअहल किया जाए और दूसरा फौरी तौर पर ऐसे इंतजामात किए जाएं कि कल होने वाला इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और जस्टली हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खदशा बिल्कुल दुरुस्त था और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खदशा बिल्कुल दुरुस्त था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जब तक हम इसके साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे जिसमें लूट मार और खरीदो फरोख्त को पकड़ा जा सके, ये नहीं हो सकता। और इस वीडियो ने यही प्रूव किया कि खरीदो फरोख्त चल रही है, लगातार चल रही, आज भी चल रही होगी। मैं बहुत श्योर हूं इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमारा एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे बहुत ही शदीद कंसर्न है, इस सारे प्रोसेस में बहुत शदीद कंसर्न है। हम ये डिमांड करते हैं कि इस माफिया को नकेल डाली जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल आजाद है। हम हुकूमत के तौर पर उनको हर तरह की असिस्टेंस देने के पाबंद हैं और हम पूरे दिल से देना चाहते हैं। उस दिन भी उनको यह अर्ज किया, आज भी अर्ज कर रहे हैं। तो नंबर 1, जैसा मैंने कहा कि गिलानी साहब को नाअहल किया जाए। वो इखलाकी, कानूनी, मॉरल अब अथॉरिटी खो चुके हैं कल का इलेक्शन लड़ने की। नंबर 2, उनके बेटे को बुला के पूछा जाए कि उन्होंने ये कहां पर सौदेबाजी की, क्यों की, किसकी इमाम पे की और उनको किस किस की इसमें सपोर्ट शामिल थी।
उनके बेटे के खिलाफ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का लॉ कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान का अदालती निजाम कहता है। और आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की आला तरीन अदालत है, हम एक दफा फिर गुजारिश करते हैं कि अभी भी वक्त है उनके डिसीजन को मनो अन इंप्लीमेंट किया जाए। यही एक राह है जिससे हम इस सारी चोर चकारी से बच सकते हैं, इस खरीदो फरोख्त से बच सकते हैं, वरना ये बाजार लगे रहेंगे और हमारे लिए एक ह्यूमिलिएशन का, एक तहकीर का, एक नदामत का समा जो है वो बंदा रहेगा। आपका शुक्रिया। शहबाज साहब, वीडियो में देखा जा रहा है कि जो अली हैदर गिलानी है वो जो एमएनए है एलिजिबली उनको तरीकाकार बता रहे हैं वोट ज़ाया करने का। ज़ाहिर ये एक आसान तरीका है कि वोट ज़ाया कर दिया जाए ताकि पता न चले कि वोट दिया या नहीं दिया। एक तो ये बता दें कि ये जो एमएनए है ये तहरीक इंसाफ के हैं, ये इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये क्यों जाके उनसे मिले और इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए पीटीआई की हुकूमत क्या करेगी? देखिए दो बातें मैं बड़ी क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं यहां आपको कि नंबर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में क्या करेगी या क्या कर रही है वो आपके सामने है। हमारा माजी आपके सामने है, हमारे लीडर का। 2013 में पहली दफा हमें इलेक्शन लड़ने का मौका मिला सेनेट का। हम 2013 के बाद 2015 में उसी में हमारे लीडर ने आवाज उठाई कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, आइडेंटिफाइबल बैलेट करें। 2015 में उसी इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि होने चाहिए, शहबाज शरीफ ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा। फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन में फिर एक सियासी जमात ने हमारी जमात के 20 लोगों को खरीदा। वहां पर वाज़े तौर पर उनके नंबर 8 थे और सीटें वो 2 ले गए। वाज़े तौर पर खरीदो फरोख्त थी। हमने अपने उन 20 एमपीएस को अपनी पार्टी से निकाला। कुछ लोग कहते हैं जी वो टर्म का एंड था, तो क्या हमने इलेक्शन में नहीं जाना था? उनका धड़ा नहीं होगा उनके इलाके में, हमें पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना था उसका? हमने लिया। हमने उन 20 लोगों को अपनी पार्टी से निकाला और यह काम पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान ने किया। यह तौफीक सिर्फ अल्लाह ने इमरान खान को दी। अब जब यह इलेक्शन आया तो हमने दोबारा पार्लियामेंट में अक्टूबर में बिल भी लेके गए। हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जहां से हम यह समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस था वो विंडिकेट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज को स्टैम्प किया कि खरीदो फरोख्त होती है, ये रुकनी चाहिए, इर्रेगुलरिटीज यहां पर रुकनी चाहिए, खरीदो फरोख्त रुकनी चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो वोट का दायमी उसका खुफिया रहना उसको रिमूव कर दिया और 1967 की जो जजमेंट थी नियाज वर्सेस अजीजुल्लाह, उसको कोर्ट किया वाज़े तौर पर कि इसमें क्या तरीका अपनाया जा सकता है। उसके बाद हमारा वक्त मिला, हमने रिक्वेस्ट की, जैसे आपको कहा, अभी भी दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे। तो तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में जो भी हमारी जमात में इन्वॉल्व हुआ, हमारी जो आईनी कमिटमेंट है वो हमेशा की तरह इंटैक्ट है। नाम आपसे क्यों नहीं दे रहे इस टाइम, अभी आपको हम नहीं बता सकते कि वो कौन है। नंबर 1 द रीजन इज सिक्योरिटी। नंबर 2 आपको पता चलेगा कि ये जो वहां पर मेंबर थे ये वहां क्यों थे, किस लिए थे, इनको किसने बुलाया था, वो तमाम चीजें वक्त के साथ आपके सामने आनी, ये चीजें छुपी नहीं रहनी। लेकिन इस टाइम मैं रिक्वेस्ट करता हूं सिक्योरिटी एजेंसी से भी, उनसे भी राब्ता किया गया है, वो जो एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, जो भी मेंबर हैं, उनको सिक्योरिटी भी दी जाए और ताकि उनकी जान को किसी किस्म का खतरा ना हो इस माफिया से। तो इसलिए इस टाइम में उस तरफ नहीं जाऊंगा। जो कैरेक्टर इसमें वाजे है, जो कैरेक्टर नजर आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको बुला के पूछे, मीडिया उनको बुला के पूछे कि भाई आप ये किसको दे रहे थे पैसे, ये आप किसको वोट जाया करने का तरीका बता रहे थे, किसको खरीद रहे थे। एक कैरेक्टर तो इसमें वाजे है ना, इसमें लूट मार करने वाला जो वोट खरीद रहा है वो कैरेक्टर वाजे है। जब वो बोल देगा तो आपको दूसरा कैरेक्टर भी सामने आ जाएगा। मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहता हूं इस टाइम सेंसिटिविटी को देखते हुए। इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर है कि वो किसी को भी बुला के हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करे। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करूंगा कि अगर वो भी कानून के तहत कोई एक्शन इसमें ले सकती है इस सिचुएशन को देखते हुए, तो जरूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसमें एक्शन ले, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि इलेक्शन की शाम तक इस तरह के सबूत जो हैं वो मीडिया में आ रहे हैं। बहुत
یہ تو جس ٹی وی چینل نے ویڈیو دی ہے جی آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کہاں سے آئی. میں نے کہا جی جس چینل نے ایئر کیا، اب آپ نام لے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کس نے ایئر کی، میں نے تو بہت سارے چینلز پہ دیکھی ہے. جس نے ایئر کی ہے اس سے پوچھیے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اور الیکشن کمیشن بلا کے پوچھے ان سے. وہ بالکل الیکشن کمیشن کی، اگر آپ کو اس بات پہ کوئی مطلب ہے کہ ارشد صاحب کے پاس یہ پہلے کیسے آئی یا ان کے پاس آئی ہے کسی کے پاس، تو الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دے دیجئے، وہ بالکل انہیں بلا کے پوچھے کہ یہ ویڈیو آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے. مدعا یہاں یہ نہیں ہے کہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے، مدعا یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر جو چوری ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ جی. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.